রেকর্ডিং স্টার্ট করলাম। কোড করেই দেখাবো আজকে, মেনলি কোনো থিওরি বলবো না। সো অ্যারে লিস্টটা ফার্স্টে দেখাবো, তারপর লিঙ্ক লিস্টটা দেখাবো। দেখে নে। এটার নাম জাস্ট আমি দিলাম অ্যারে লিস্ট 1.java, দেন এখানে আমি দিলাম ক্লাস অ্যারে লিস্ট 1, দেন নর্মাল পাবলিক স্ট্যাটিক ভয়েড মেন যেমন দিতে হয় এটা দিলাম। দেওয়ার পরে আমার অ্যারে লিস্টটা থাকে কোথায়? জাভা ডট ইউটিল প্যাকেজের মধ্যে সব কটা থাকে আর কি। হ্যাঁ, ইম্পোর্ট জাভা ডট ইউটিল ডট স্টার, এর মধ্যে সব এসে যাবে। কালেকশন ফ্রেমওয়ার্কটা টোটালটাই এর মধ্যে চলে আসবে। এবার এর মধ্যে আমার চাই হচ্ছে অ্যারে লিস্ট, ঠিক আছে? অ্যারে লিস্টটাকে চাই। এবার অ্যারে লিস্টের ইমপ্লিমেন্টেশন কোত্থেকে হয়? লিস্ট বলে যে ইন্টারফেসটা আছে তার থেকে অ্যারে লিস্টের ইমপ্লিমেন্টেশন হয়। সো আমি লিস্টের রেফারেন্স ভ্যারিয়েবল বানাবো অ্যান্ড আমাকে অ্যাঙ্গুলার ব্র্যাকেটের মধ্যে দিতে হবে যে কোন ধরনের এলিমেন্টাল লিস্ট হবে এটা। সো এটা ইন্টিজারের লিস্ট হবে। সো আমি এখানে ইন্টিজার দিয়ে দিচ্ছি। কালেকশন ফ্রেমওয়ার্কে সবসময়তে অবজেক্ট নিয়ে কাজ করতে হয়, নর্মাল ইন্ট নিয়ে কখনো কাজ করা যাবে না, ইন্ট দিয়ে হবে না, ইন্টিজার দিয়ে করতে হবে, ইন্টিজার। দেন লিস্টের নাম দিয়ে দিলাম একটা যে কোনো, ইকুয়ালস টু নিউ অ্যারে লিস্ট লিখতে হবে। শুধু লিস্ট লিখলে হবে না, ঠিক আছে? অ্যারে লিস্ট লিখতে হবে, শুধু লিস্ট লিখলে হবে না, কারণ নিউ অ্যারে লিস্টে লেখা যাবে, কারণ অ্যারে লিস্টটা ক্লাস আর লিস্টটা যেটা, লিস্টটা কিন্তু একটা ইন্টারফেস, তার সাথে কখনো নিউ দেওয়া যায় না, ইন্টারফেসের কখনো অবজেক্ট বানানো যায় না। ওকে, এটা গেল। এবারে এর মধ্যে লিস্টটা ইন্টারফেস, তার চাইল্ড হচ্ছে অ্যারে লিস্ট, মানে অ্যারে লিস্টের মধ্যে লিস্টটাকে ইমপ্লিমেন্ট করা হয়েছে। অ্যারে লিস্টের মধ্যে লিস্টকে ইমপ্লিমেন্ট করা হয়েছে। সো আমি এখানে দিলাম লিস্ট ডট অ্যাড, লিস্ট ডট অ্যাড করে এখানে দিলাম 25, তারপর কিছু এলিমেন্ট অ্যাড করতে থাকছি। লিস্ট ডট অ্যাড 35, লিস্ট ডট অ্যাড 50, এরকম করে এলিমেন্ট অ্যাড হতে থাকবে। যদি লিস্টটাকে প্রিন্ট করতে চাই তো নর্মাল সিস্টেম ডট আউট করেই প্রিন্ট করে দেওয়া যাবে লিস্টটাকে। জাস্ট লিস্ট লিখলাম, তাহলে এটা প্রিন্ট হয়ে যাবে। আমি এবার টার্মিনালে ওপেন করে দেখাই। এখানে লিখলাম জাভা সি অ্যারে লিস্ট 1.java, দেন জাভা অ্যারে লিস্ট 1, প্রিন্ট হয়ে গেছে লিস্টটা। 25 অ্যাড হয়েছে, তারপরে 35 অ্যাড হয়েছে, তারপরে 50 অ্যাড হয়েছে। সো অ্যাড ফাংশন ফার্স্টে আমি বললাম, অ্যাড ফাংশন, অ্যাড ফাংশনটা কী করে? অ্যাডস এলিমেন্ট টু দ্য লাস্ট, অ্যাডস এলিমেন্টস টু দ্য লাস্ট, টু দ্য এন্ড, ঠিক আছে? এবার অ্যাড ফাংশনের মধ্যে আরেকটা জিনিসও করা যায়, হ্যাঁ, স্পেসিফিক ইন্ডেক্সেও করা যাবে, টু দ্য এন্ড অর স্পেসিফিক ইন্ডেক্স, স্পেসিফিক ইন্ডেক্স। এটা কীভাবে করবে? এটার জন্য অ্যাডের মধ্যে দুটো প্যারামিটার দিতে হবে, সেটা এভাবে চলবে। আমি এখানে দেবো লিস্ট ডট অ্যাড, অ্যাড দিয়ে ফার্স্টে আমাকে দিতে হবে ইন্ডেক্স, নেক্সটে আমি দেবো যে এলিমেন্টটাকে ইনসার্ট করবো। সো আমি চাইছি 0, 1, 2th ইন্ডেক্সে যাক এটা, মানে 25, 35-এর পরে এটা আসুক। সো আমি এখানে দেবো 2th ইন্ডেক্স আমি চাইলাম ধর 58, তো এখানে 58টা 25, 35-এর পরে আসবে। দেখে নিন, পরে এসে 2 ইন্ডেক্সে এসছে। তো কোনো স্পেসিফিক ইন্ডেক্সও আমি এন্ট্রি করতে কিন্তু পারবো। ফার্স্টে অ্যাড করতে গেলে 0 দিতে হবে, তো 0, 45, তো 45 একদম ফার্স্টে অ্যাড হয়ে যাবে।
দেখে নিন ফার্স্টে অ্যাড হয়ে গেছে 45, এরকম করে করা যায় কাজ। এবার নর্মালি অ্যাক্সেস যদি করতে চাই আলাদা আলাদা অ্যাক্সেস মানে অ্যারের মধ্যে যেভাবে এভাবে করতাম, এভাবে অ্যাক্সেস করতাম, এভাবে করা যায় না এখানে, কারণ এটা অ্যারে না, হ্যাঁ এটা অ্যারে লিস্ট। এর জন্য ফাংশন আছে গেট ফাংশন, গেট। সো এখানে যদি আমি করি সিস্টেম ডট আউট ডট প্রিন্টএলএন, আউট ডট প্রিন্টএলএন, এখানে ধরুন লিস্ট ডট गेट, लिस्ट डॉट गेट ज़ीरो। सो ज़ीरो इंडेक्स पे जो है वो आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे एक बार कंपाइल करके देखते हैं, कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। देखो 45 ज़ीरो इंडेक्स पे 45 था, तो ज़ीरो इंडेक्स 45 था तो वो आ गया, इतना ही था। गेट फंक्शन से हम लोग किसी भी इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको गेट कर सकते हैं, हो गया। अभी लिस्ट के अंदर जनरली बहुत सारे एलिमेंट को अगर मुझको ऐड करना है, हाँ एक साथ बहुत सारे एलिमेंट को मुझे ऐड करना है, या समझ लो कि बहुत सारे एलिमेंट को रिमूव करना है, ये सब करने के लिए हम लोग कैसे कर सकते हैं। जैसे ऐड किया गेट किया, वैसे ही रिमूव नाम का एक फंक्शन भी होता है, ठीक है। रिमूव यह क्या करता है, रिमूव्स एन एलिमेंट, रिमूव्स एन एलिमेंट फ्रॉम अ स्पेसिफिक इंडेक्स, कोई स्पेसिफिक इंडेक्स से वो रिमूव करता है एलिमेंट, स्पेसिफिक इंडेक्स। सो अगर मुझे किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को रिमूव करना है, समझ लो वन इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको रिमूव करना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा लिस्ट डॉट डॉट रिमूव, समझ लो वन लिख दिया, तो वन इंडेक्स पे जो है वो रिमूव हो जाएगा। मैंने यहाँ पे लिखा सिस्टम डॉट आउट लिस्ट को भी प्रिंट करके देखो, वन इंडेक्स पे जो था वो डिलीट हो जाएगा, मतलब 45 देख लो एक बार क्या आता है। ये देखो वन इंडेक्स पे 25 था, 25 डिलीट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे नया वाला में 25 नहीं आया है, ठीक। तो ये था, इस स्पेसिफिक इंडेक्स के एलिमेंट को हम लोग रिमूव कर सकते हैं। अगर किसी स्पेसिफिक इंडेक्स को ही मुझे रिमूव करना है, मतलब एलिमेंट को ही रिमूव करना है, मुझे नहीं पता 45 कहाँ पे है, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे उसको गेट कर लूँगा, जस्ट उसका इंडेक्स मुझे उसको अगर उसका इंडेक्स मुझे चाहिए तो उसको जस्ट गेट कर लूँगा, ऐसे भी कर सकता हूँ। तो देख लो ये तो हो गया। अभी किसी एलिमेंट का जो स्पेसिफिक इंडेक्स है वो कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे एक फंक्शन होता है इंडेक्स ऑफ नाम का भी, जिससे हम लोग किसी इंडेक्स पे तो उस एलिमेंट का इंडेक्स क्या है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटएलएन लिस्ट डॉट इंडेक्स ऑफ, समझ लो मैंने दे दिया 45, ठीक है। तो 45 का इंडेक्स यहाँ पे 0 है, तो देखो 0 आ जाएगा, देखो 0 आया है, ठीक है, 0 आ गया, बाकी एलिमेंट्स भी आया है 0। सो ये था इंडेक्स ऑफ फंक्शन, इट गिव्स द इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट, इंडेक्स ऑफ एन एलिमेंट ये होता है। वैसे ही सेम तरीके से और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, देख लो यहाँ पे ऐड ऑल नाम का एक फंक्शन होता है, उसके बाद रिमूव ऑल नाम का भी एक फंक्शन होता है। उससे पहले और एक फंक्शन समझाना है, वो है कंटेन्स फंक्शन। एक लिस्ट एक एलिमेंट को कंटेन करता है या नहीं करता है। समझ लो ये वाला लिस्ट क्या था मेरा, एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं, इधर मैंने प्रिंट किया था, ये था 45 35 58 50। अभी इसके अंदर 58 है या नहीं है, इसको प्रिंट करने के लिए मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटएलएन करूँगा। उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे लिस्ट डॉट कंटेन्स, कंटेन्स देखे समझ लो मैंने दिया 58, तो ये ट्रू या फॉल्स देगा, ठीक है। देख लो देखो ट्रू दिया है क्योंकि है 58 है, हो गया। वैसे ही ऐड ऑल रिमूव ऑल एंड कंटेन्स ऑल नाम का भी एक फंक्शन होता है,
कंटेन्स ऑल, ये 3 फंक्शंस होता है। ये 3 फंक्शन जनरली लिस्ट में एक साथ बहुत सारे एलिमेंट को ऐड करने के लिए, रिमूव करने के लिए और कंटेन करने के लिए मुझे यूज़ करना होता है, ठीक है। तो मैंने समझ लो यहाँ पे और एक लिस्ट बनाया, लिस्ट इंटीजर का लिस्ट ही बनाया मैंने, उसका नाम नम्स दे दिया, समझ लो नम्स इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। ये देने के बाद नम्स के अंदर कुछ एलिमेंट्स ऐड करते हैं। पहले तो नम्स डॉट ऐड, यहाँ पे दे देते हैं सेम टाइप का एलिमेंट ऐड करते हैं 58 एंड 50, ठीक है, क्योंकि लिस्ट के अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट रह सकता है। अभी यहाँ पे जो मेरा पहला वाला लिस्ट था, लिस्ट नाम का जो, उसके अंदर मैं पूरा का पूरा नम्स नाम के लिस्ट को मैं ऐड करना चाहता हूँ। नम्स नाम का जो लिस्ट है, सॉरी अलग अलग से ऐड करना होगा, 58 एंड देन यहाँ पे फिर से लिखना होगा 50। अभी यहाँ पे ये वाला जो लिस्ट है ये ऐसा बन चुका है, 58 एंड 50 ऐसा बन चुका है। अभी समझ लो नम्स को मुझे ऐड करना है उस लिस्ट वाले लिस्ट पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूँगा लिस्ट डॉट ऐड ऑल, ठीक है, ऐड ऑल। ऐड ऑल लिखने के बाद मैंने नम्स अगर लिखा, उसके बाद देखना उसके अंदर 58 एंड 50 फिर से आ जाएगा, क्योंकि लिस्ट के अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट रह सकता है। देखो 58 50 फिर से 58 50, तो ऐड ऑल से हम लोग बहुत सारे एलिमेंट को एक साथ ऐड कर सकते हैं। अभी समझ लो मैं किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पे भी ऐड कर सकता हूँ बहुत सारे एलिमेंट को। समझ लो मैंने मुझे এটা লিস্ট ফাংশন না কোনো, এটা লিস্ট ভ্যারিয়েবল। যেমন তোরা যেটা এটা করিস না, অ্যারের যেমন ভ্যারিয়েবল হয় এআরআর, এরকম করে তোরা বানাতিস না অ্যারের ভ্যারিয়েবল, ইন্ট তারপর এআরআর করে ইকুয়ালস টু নিউ ইন্ট 5। সো এখন যদি আমাকে যদি পুরো অ্যারেটাকে প্রিন্ট করতে হতো তাহলে আমি কেমন করে করতাম? প্রথমে এআরআর 0কে প্রিন্ট করতাম, তারপরে এআরআর 1কে করতাম, তারপরে এআরআর 2কে করতাম, এরকম করতাম না। কিন্তু যদি তোকে এরকম করে কেউ বলে দেয় শুধু এআরআরকে প্রিন্ট করো, তাহলেই পুরো লিস্টটা প্রিন্ট হয়ে যাবে, তাহলে ভালো হয়। আমার লুপ লাগলো না তো, তাই না? সো যদি আমি একটা অ্যারে প্রিন্ট করার সময়তে আমার অত কিছু এলিমেন্ট আলাদা আলাদা করে অ্যাড করার দরকার নেই, আমি জাস্ট ভ্যারিয়েবলটার নাম লিখব, তাহলেই আমার কাজ হয়ে যাবে। সেটা অনেক ইজি। তো তাই জন্য সেটা এখানে তাই करा है। लिस्ट वेरिएबल, ये लिस्ट वेरिएबल है, इसके अंदर मैंने बहुत सारे एलिमेंट को ऐड किया, 25 35 50 ऐसे ऐड किया। अभी एक एक करके मुझे प्रिंट नहीं करना, मैं सिर्फ लिस्ट लिखूँगा, पूरा प्रिंट हो जाएगा। हाँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट पूरा लिस्ट ही प्रिंट हो जाएगा। अभी इसके बाद जनरली ऐड ऑल से हम लोग बहुत सारे एलिमेंट को एक साथ लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। अभी समझ लो मैं किसी स्पेसिफिक जगह पे ऐड करना चाहता हूँ, वो भी कर सकता हूँ। समझ लो मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो ऐड हुआ है 45 35 58 50 देन 58 50, ऐसा जो ऐड हुआ है मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए 45 के बाद 58 ऐड हो, उसके बाद 50 ऐड हो, ऐसे मतलब 58 50 जो है वो यहाँ पे ऐड हो 1 इंडेक्स में, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। ऐड ऑल देखे 1 कॉमा लिख सकते हैं, ऐसे भी होगा। ऐसे देख लेना 1 इंडेक्स पे आ जाएगा। तो अभी कैसा आंसर आएगा 45, 1 इंडेक्स पे आ जाएगा 58 एंड 50 देन 35 58 50। देखो 45 58 50 35 58 50, तो किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पे भी मैं ऐड कर सकता हूँ एलिमेंट को, ठीक है। तो ये होता है ऐड ऑल फंक्शन। और रिमूव ऑल फंक्शन जनरली वो होता है जब बहुत सारे एलिमेंट को हम लोगों को एक साथ रिमूव करना है। समझ लो मैंने यहाँ पे लिखा लिस्ट डॉट रिमूव ऑल नम्स दे दिया, तो 58 एंड 50 को वो डिलीट कर देगा। देख लो यहाँ पे मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ, यहाँ पे 2 58 एंड 2 50 है, ठीक है। तो देखो अभी क्या आता है, देखो जितना भी सारा 58 एंड 50 था वो चला गया, ठीक है। जितना भी सारा 58 एंड 50 था वो चला गया, सिर्फ 45 एंड 35। सो रिमूव ऑल क्या करेगा, रिमूव ऑल वो सारे एलिमेंट को हटा देगा जो एक लिस्ट के अंदर होगा। मतलब
नम्स के अंदर क्या क्या है, लिस्ट के अंदर क्या क्या है। जो लिस्ट है मेरा, लिस्ट के अंदर था ऐसा 45 था, 50 था, 58 था, और एक 58 था, और एक 50 था, और 35 था, हाँ 35 था, ऐसा था। तो जब मैंने रिमूव ऑल किया नम्स को जब रिमूव ऑल किया, नम्स के अंदर क्या क्या था 58 एंड 50, तो वो क्या करेगा, लिस्ट डॉट रिमूव ऑल नम्स जब मैंने किया तो वो सारे के सारे ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ना, इनमें से नम्स के अंदर जो है उनको डिलीट कर देगा। नम्स के अंदर 58 है तो 58 को यहाँ से हटा देगा, नम्स के अंदर 50 है तो 50 को भी यहाँ से हटा देगा, ठीक है। तो रिमूव ऑल क्या करता है, एक साथ बहुत सारे एलिमेंट को रिमूव भी कर सकता है। ये हो गया। सेम तरीके से कंटेन्स ऑल नाम का भी एक फंक्शन होता है। समझ लो मैंने नम्स के अंदर जो कुछ एलिमेंट है वो मुझे नहीं चाहिए, मैं उसको हटा देता हूँ। इसके लिए एक फंक्शन होता है, उसका नाम है क्लियर फंक्शन। क्लियर, इट क्लियर्स और मेक्स अ लिस्ट एम्प्टी, मतलब लिस्ट को एम्प्टी कर देता है ये। तो यहाँ पे देखो लिस्ट नहीं, नम्स डॉट क्लियर कर दिया मैंने, तो नम्स के अंदर जो एलिमेंट था वो क्लियर हो चुका है। अभी नम्स के अंदर मैं 45 एंड 35 को इंसर्ट करता हूँ। नम्स डॉट ऐड 45 एंड नम्स डॉट ऐड 35, ठीक। अभी नम्स के अंदर क्या क्या है, अभी नम्स के अंदर 45 एंड 35 ऐसा ऐसा। अभी अगर 45 एंड 35 है तो मुझे चेक करना है कि लिस्ट वाला जो लिस्ट है उसके अंदर 35 एंड 45 एक साथ है या नहीं। तो मुझे चेक करना है ये सारा का सारा एलिमेंट लिस्ट के अंदर है या नहीं, मतलब लिस्ट नाम का जो लिस्ट था उसके अंदर है या नहीं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा लिस्ट डॉट कंटेन्स ऑल नम्स। तो वो क्या करेगा, वो रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स, ठीक है, रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स। तो इसको एक बुलियन वेरिएबल के अंदर ले लेते हैं, बुलियन बी, क्योंकि जब भी कोई फंक्शन कुछ रिटर्न करता है उसको मुझे किसी वेरिएबल के अंदर या फंक्शन के अंदर कॉल करना होता है, मतलब कैच करना होता है, ठीक है। तो मैंने वैसा ही किया, सिस आउट बी को प्रिंट किया, तो देखो ट्रू आएगा क्योंकि 45 एंड 35 है। देखो ट्रू आया है क्योंकि 45 एंड 35 है, ठीक है। तो इतना ही था। कंटेन्स ऑल फंक्शन आई थिंक समझ में आ चुका है। अभी देखो कौन सा फंक्शन रिटर्न कर रहा है एंड कौन सा फंक्शन रिटर्न नहीं कर रहा है। लिस्ट डॉट ऐड फंक्शन जो है ना वो सिर्फ एलिमेंट को ऐड कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। हाँ, वैसे ही ऐड फंक्शन के अंदर मैंने अगर इंडेक्स एंड एलिमेंट दे दिया तो वैसे भी उसी इंडेक्स पे एलिमेंट को ऐड कर रहा है और कुछ नहीं। गेट फंक्शन जो था, गेट फंक्शन क्या कर रहा था, वो रिटर्न कर रहा था, ठीक है। गेट फंक्शन रिटर्न कर रहा था। अगर मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा ना लिस्ट डॉट गेट 4, तो 4 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है ना उसको वो रिटर्न करेगा। हाँ, इसलिए मुझे इसको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर लिखना पड़ा। अगर मैं इसको इस यहाँ पे नहीं लिखता अंदर तो उसको किसी वेरिएबल के अंदर मुझे स्टोर करना पड़ता, किसी इंटीजर वेरिएबल के अंदर मुझे स्टोर करना पड़ता, उसके बाद उस वेरिएबल को मुझे प्रिंट करना पड़ता। तो इसलिए मुझे यहाँ पे फंक्शन के अंदर लिखना पड़ा गेट फंक्शन, ठीक है। रिमूव फंक्शन क्या करते हैं, किसी एक इंडेक्स से एलिमेंट को रिमूव कर देते हैं। इंडेक्स ऑफ फंक्शन क्या करता है, ये भी रिटर्न करते हैं, ये भी रिटर्न करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, इट रिटर्न्स द एलिमेंट एट स्पेसिफाइड इंडेक्स। उस इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको वो रिटर्न करेगा। देन इंडेक्स ऑफ क्या करेगा, इट रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट, रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट। सो अगर कोई भी कुछ रिटर्न करेगा तो उसको किसी फंक्शन के अंदर या वेरिएबल के अंदर लेके उसको फंक्शन के अंदर देन प्रिंट करना होगा। कंटेन्स फंक्शन क्या करता है, कंटेन्स फंक्शन रिटर्न करता है, क्या रिटर्न करता है, ट्रू या फॉल्स। कंटेन्स इट रिटर्न्स true or false according to the
एलिमेंट exists on the list or not, on the list or not, यही था। तो लिस्ट के अंदर ये कौन, अच्छा तुम बता सकती हो कि कौन सा फंक्शन रिटर्न करता है, कौन सा फंक्शन रिटर्न नहीं करता। जो कोई भी फंक्शन तुम देखोगी ना कि कैच कर रहा है, कोई किसी फंक्शन को कॉल करने के टाइम कैच हो रहा है, तो समझ जाना कि रिटर्न हो रहा है। क्योंकि देखो ये वाला देखो, ऐड कहीं पे कैच हुआ है, नहीं हुआ है, जस्ट लिखा गया है नॉर्मली, कुछ नहीं हुआ है। रिमूव में देखो, रिमूव में देखो कुछ नहीं हुआ है, ऐड ऑल में कुछ नहीं हुआ है, रिमूव ऑल में कुछ नहीं हुआ है। लेकिन जब मैंने गेट किया तब देखो फंक्शन के अंदर लिखा है मैंने। जब फंक्शन के अंदर लिखा मतलब जब वो रिटर्न करेगा तभी वो प्रिंट कर देगा, जब वो रिटर्न करेगा तभी वो प्रिंट कर देगा। इसलिए रिटर्न करने के लिए कैच किया मैंने, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन फंक्शन से मैंने कैच किया, ठीक है। वैसे ही सेम तरीके से यहाँ पे भी लिस्ट डॉट इंडेक्स ऑफ, यहाँ देखो फंक्शन के अंदर लिखा है तो मैंने कैच किया। यहाँ पे भी कंटेंट्स फंक्शन देखो कैच किया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। अच्छा अगर सर हाँ बताओ, अगर बाहर में लिस्ट डॉट कंटेंट्स और उसके बाद इंडेक्स का नंबर मैचिंग वो एलिमेंट का नंबर लिखे और फिर उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखे, तब होगा सर? मतलब ऐसे बाहर लिखोगी कि लिस्ट डॉट इंडेक्स ऑफ, समझ लो कोई भी एलिमेंट 45, हाँ इसको तुमको कैच करना होगा, कोई ना कोई वेरिएबल के अंदर कैच करना होगा, ठीक है। तो एक वेरिएबल तो लिखना ही होगा ना, क्योंकि वो रिटर्न कर रहा है ना। रिटर्न कहाँ पे करता है, रिटर्न ऑपरेटिंग सिस्टम को करता है, ठीक है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम को कर देगा तो मुझको नहीं मिलेगा ना, तो मैं इंट इंडेक्स, इंडेक्स के अंदर मैंने ले लिया, अभी इंडेक्स को यहाँ पे प्रिंट कर दो। इंडेक्स नाम के वेरिएबल के अंदर मैंने कैच कर लिया, तो अभी इंडेक्स को यहाँ पे प्रिंट करना होगा। सेम बात ही हुआ, कुछ अलग नहीं हुआ। हाँ पहले मैं डायरेक्टली इसको यहाँ पे लिख रहा था, वही हुआ, सेम बात ही हुआ। एक वेरिएबल के अंदर कैच करके वेरिएबल को प्रिंट किया और वहाँ पे डायरेक्टली फंक्शन से कैच किया। यहाँ पे भी वैसा कर सकते हो, देखो मैंने किया है ऑलरेडी, यहाँ पे किया है। देखो लिस्ट डॉट कंटेंट्स ऑल नम्स, नम्स के अंदर क्या क्या है 45 एंड 35, और लिस्ट के अंदर क्या क्या है, लिस्ट के अंदर भी 45 एंड 35 ही है। तो देखो लिस्ट डॉट कंटेंट्स ऑल नम्स, ये तो ट्रू देगा ना, क्योंकि लिस्ट के अंदर नम्स का कंटेंट है, हाँ है 45 एंड 35 कंटेंट है, तो वो बी के अंदर ट्रू दे देगा, बी के अंदर ट्रू दे देगा। और मैंने यहाँ पे बी को प्रिंट कर दिया। ऐसा भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, इसको यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हो बी की जगह, हाँ फंक्शन के अंदर ऐसा भी कर सकते हैं। तो देखो इतना सारा फंक्शंस होता है मेनली। सो लिस्ट के अंदर कहीं भी কারণ আমি অ্যাড অল করেছি না, নামসটাকে অ্যাড করেছি না পুরোটা লিস্টের মধ্যে। আমি এবার नोटपैड एक बार बुझिए दी निशा, समझ में आया तुमको? नम्स को टोटली ऐड किया मैंने लिस्ट के अंदर, वो फंक्शन ऐड ऑल फंक्शन होता है, उससे ऐड ऑल फंक्शन से बहुत सारे एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं, रिमूव ऑल फंक्शन से बहुत सारे एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं, क्लियर फंक्शन से किसी लिस्ट को पूरा क्लियर कर सकते हैं, और कंटेंट्स ऑल फंक्शन से एक लिस्ट के अंदर और एक लिस्ट कंटेंट है या नहीं है वो देख सकते हैं। तो इतना सारा फंक्शंस होता है। हाँ एक्चुअल में मैं बता देता हूँ कि इतना सारा फंक्शन याद रखोगी ना तभी चलेगा, क्योंकि तुम लिस्ट पढ़ोगी, इसके बाद मैप पढ़ोगी, इसके बाद सेट पढ़ोगी, इतना कुछ याद रखने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सेम फंक्शन ही है। वहाँ पर सेट के अंदर कुछ दूसरा फंक्शन नहीं आ जाएगा, इंडेक्स ऑफ फंक्शन है इंडेक्स ऑफ ही रहेगा, ऐड फंक्शन है ऐड ही रहेगा, कुछ अलग नहीं होगा। हाँ स्टैक में जाके थोड़ा सा अलग होगा, मतलब जो जो टाइप्स होता है लाइक लिंक लिस्ट, एरे लिस्ट, उसके बाद स्टैक एंड क्यूज, सब सेम टाइप का कंसेप्ट ही है, ज़्यादा अलग नहीं है, ठीक है। पुश वाले हैं, যাই হোক এটা হলো। नाउ ये करने के बाद मुझे और एक चीज़ समझना है कि समझ लो, एक बात तो समझ गए तुम कि एक प्रॉब्लम अगर एरे दे दिया, देखो पहले एरे के अंदर
कोई प्रॉब्लम अगर एरे से दे दिया, मतलब कोई भी प्रॉब्लम प्लेसमेंट के अंदर एरे रिलेटेड दे दिया, तो एरे रिलेटेड प्रॉब्लम तो तुम सॉल्व नहीं कर सकती ऐसे, क्योंकि एरे को तुम बड़ा या छोटा नहीं कर सकते, ठीक है। और एक बात कि एरे में कहीं पे भी तुम एलिमेंट को इंसर्ट करने में प्रॉब्लम हो सकता है, हाँ, तो उसको हम लोग अगर लिस्ट में चेंज कर लें और उसके बाद लिस्ट में पूरा काम किया, उसके बाद लिस्ट को एरे में चेंज कर दिया, ये बहुत अच्छा उपाय होता है, ठीक है। सो जनरली तुम लोगों को टाइप कास्टिंग जानना होगा, हाँ, एरे टू एरे लिस्ट में चेंज करना एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया टाइप कास्टिंग। पहले बताएंगे एरे से एरे टू एरे लिस्ट, एरे से एरे लिस्ट में चेंज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात तो ये कि एरेज नाम का एक क्लास तो होता ही है, ठीक है, वो वाला क्लास यहाँ पे काम करेगा, ठीक है। समझ लो मैंने यहाँ पे कोई एरे बनाया, समझ लो इंट ARRD नाम दे दिया इक्वल्स टू न्यू इंट, इसके अंदर मैंने दे दिया 5 साइज़ का एक एरे, और इसके अलग अलग इंडेक्स पे अलग अलग एलिमेंट रहेगा। समझ लो ARR 0 पे कुछ एलिमेंट रहेगा, समझ लो 20 है, और वैसे ही तो सर समझ लो यहाँ पे एरे के अंदर मैंने 5 एलिमेंट ऐड कर दिया 0 to 4 इंडेक्स पे। अभी इसको मुझे लिस्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है, इस वाले एरे को मुझे लिस्ट में कन्वर्ट करना है। सो जनरली इसमें देखो एलिमेंट किस फॉर्मेट में है, एलिमेंट्स आर इन इंट में है, तो लेकिन कभी भी इंट का लिस्ट होता है नहीं होता, इंटीजर का लिस्ट होता है ना, इंटीजर का लिस्ट होता है, ये दोनों अलग चीज़ है। इंट जो है, इंट प्रिमिटिव डेटा टाइप है, और इंटीजर जो है वो रैपर क्लास है, ठीक है, ये डिफरेंस है। इंटीजर एक रैपर, मतलब इंटीजर ए लिखा, और समझ मैं नेक्स्ट लाइन पे लिखता हूँ, अगर मैंने ऐसे लिखा इंट एन, ठीक है, और एक जगह पे लिखा इंटीजर ए, ठीक है, सो ये तो एक वेरिएबल रहेगा, नॉर्मल सा वेरिएबल, हाँ, नॉर्मल जो वेरिएबल होता है वैसे एक वेरिएबल रहेगा। लेकिन अगर मैंने इंटीजर ए दिया ना, इंटीजर ए अगर दिया तो ये नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, ये है रेफरेंस वेरिएबल, ये रेफरेंस वेरिएबल। रेफरेंस वेरिएबल मतलब ये ट्रीट होगा एज एन ऑब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ये ट्रीट होगा एज ए प्रिमिटिव डेटा टाइप। ये डिफरेंस है, ठीक है। हम लोग ऐसा कर सकते हैं इंटीजर ए इक्वल्स टू न्यू इंटीजर, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन हम लोग इंट एन इक्वल्स टू न्यू इंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट नहीं है, वो डेटा टाइप है नॉर्मल, जैसा सी में होता है, ठीक है। सो इसलिए मुझे इंटीजर का जो एरे होता है उसको हम लोग डायरेक्टली इंटीजर लिस्ट में नहीं चेंज कर सकते, इंटीजर एरे से हम लोग डायरेक्टली इंटीजर लिस्ट में नहीं चेंज कर सकते। तो एक ही उपाय है, पहले उसको कॉपी कर लो एक इस वाले पे, ठीक है, मैंने एक और एरे बनाया इंटीजर ARR1 इक्वल्स टू न्यू नहीं सॉरी, यहाँ पे ऐसा देना होगा, लिस्ट बना, मैं एरे बना रहा हूँ यार, एक इंटीजर टाइप का एरे, नॉट इंट टाइप का, जस्ट यहाँ पे इंट की जगह इंटीजर कर दिया और कुछ नहीं, न्यू इंटीजर, ठीक है। साइज़ दे दो, समझ लो मैंने 5 साइज़ था तो मैं 5 ही साइज़ देता हूँ, और यहाँ पे नाम देता हूँ ARR1, ठीक है, क्योंकि उसका नाम ARR पहले से था। अभी इसके अंदर मैं पूरा का पूरा एलिमेंट्स को ऐड करता हूँ, मतलब यहाँ से यहाँ तक एलिमेंट को कॉपी करता हूँ। तो कॉपी करने के लिए तो एक फंक्शन होता है, तुम लोगों को पता होगा, arrays डॉट
एरेज डॉट कॉपी ऑफ नाम का एक फंक्शन होता है, एरेज डॉट कॉपी ऑफ। इसके अंदर समझ लो मैंने दे दिया ARR, एक सेकेंड। अच्छा निशा तुमको पता है नहीं है कि ये कॉपी ऑफ फंक्शन होता है? नहीं तो तुम वैसे भी नॉर्मली कर सकते हो, मतलब जो एक एक करके एलिमेंट को उठा के करते हैं ना, वैसे भी कर सकते हो, मैटर नहीं करता। एक क्लास में आप बताएं। हाँ, सो कॉपी ऑफ फंक्शन जो होता है, कॉपी ऑफ फंक्शन से हम लोग डायरेक्टली एक लिस्ट को दूसरे लिस्ट के अंदर कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने दे दिया एरेज डॉट कॉपी ऑफ, यहाँ पे दे दिया समझ लो एरे का नाम जो मैं कॉपी करना चाहता हूँ, उसका नाम ARR, एंड उसका साइज़ भी देना होगा, साइज़ समझ लो 5। तो मैं इसको कहाँ पे पूरा कॉपी करूँगा ARR 1 के अंदर। मैं यहाँ पे दे दूँगा ARR 1 इक्वल्स टू कॉपी। देखो यहाँ पे एरर दे रहा है, क्यों एरर दे रहा है? क्योंकि ये इंटीजर एरे है, ये इंटीजर एरे है, ये इंट एरे है और ये इंटीजर एरे है, ये प्रॉब्लम है। देख लो टाइप कन्वर्ट इनटू इंटीजर, হ্যাঁ টাইপ কাস্টিং করা যাবে না এখানে, যদি এখানে এরকম করে করি না, अगर हम लोगों ने ऐसे किया इंटीजर इंटीजर तो टाइप कास्टिंग होगा नहीं। सो एक्चुअल में मैं जो उपाय यूज़ करता हूँ वो सबसे अच्छा है। मैं करता हूँ एक एक करके एलिमेंट को उठा के लिस्ट के अंदर डालूँ, वो सबसे अच्छा है, उससे अच्छा कोई नहीं। तो मैं यहाँ पे एक लिस्ट लूँगा, लिस्ट इंटीजर का ही लिस्ट, इंटीजर समझ लो उसका नाम मैंने कुछ दे दिया ARR लिस्ट दे दिया इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट। साइज़ देने का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि साइज़ कम या छोटा हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने फॉर लूप चलाऊँगा अभी मैं, फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, मतलब एरे में मैं इटरेट करूँगा, मतलब एरे का एलिमेंट 0 से, मतलब 0 एलिमेंट को 0 नंबर इंडेक्स का एलिमेंट को उठाऊँगा ARR लिस्ट के अंदर डालूंगा, 1 इंडेक्स को उठाऊँगा ARR लिस्ट के अंदर डालूंगा, ऐसे करूँगा, ठीक है। तो देखो i लेस देन ARR डॉट लेंथ i प्लस प्लस। अब यहाँ पे ARR लिस्ट के अंदर हम लोग ऐड करते जाएंगे, ARR लिस्ट डॉट ऐड किसको ऐड करेंगे? ARR i को ऐड करेंगे ना, ARR i को, हो गया, अभी काम हो गया। अभी देखो वो वाला जो ये वाला जो एरे था ये पूरा लिस्ट में कन्वर्ट हो चुका है, इस वाले लिस्ट के अंदर ARR लिस्ट के अंदर पूरा कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। सो ये एक उपाय है, और एक भी उपाय है जिससे हम लोग कर सकते हैं, लेकिन जनरली उसमें ना एक प्रॉब्लम होता है। अगर मैंने ऐसे किया एरेज डॉट एज लिस्ट, इसके अंदर मैंने दे दिया ARR, इससे भी हो सकता है, ठीक है, इससे भी हो सकता है, ये बहुत आसान सा उपाय है, लेकिन হ্যাঁ অ্যাজ লিস্ট আমি বলছি, এক্ষুনি বলছি, তারা বুঝিয়ে নি। ARR ये वाला एक एरे है, ये नॉर्मल एक एरे है, एरे इसके अंदर मैंने दिया 20 30 40 50 एंड 60। तो ये था भाई, मैन्युअली अगर इसको पूरा लिस्ट में कन्वर्ट करना है तो मैन्युअली हम लोग ऐसे करते हैं, मैन्युअली कन्वर्टिंग टू एरे लिस्ट, ठीक है, कन्वर्टिंग टू लिस्ट एरे से, ठीक है। सो ये वाला जो एरे ARR लिस्ट है वो पूरा लिस्ट के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है, ये हो गया, एक उपाय हुआ। लेकिन और एक उपाय भी होता है, वो है एज लिस्ट नाम का एक फंक्शन। ये वाला तो तुमको समझ में आ गया होगा ना निशा, ये देखो एक एक करके एलिमेंट को उठा, एक एक करके एलिमेंट को ऐड किया, ये तो बहुत बेसिक सा काम है, ये तो बहुत बेसिक है, क्योंकि ये खाली लिस्ट है, ARR लिस्ट खाली है। अभी इसमें मैंने 20 को उठाया रखा, 30 को उठाया रखा, 40 को उठाया रखा, वैसे ही किया और कुछ नहीं। यहाँ पे मैंने क्या किया, समझ लो मैंने और एक लिस्ट बनाया जो खाली है, ठीक है, इंटीजर न्यू लिस्ट नाम दे दिया इसका, समझ लो, हाँ न्यू लिस्ट ही नाम देते हैं, इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट। अगर मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा न्यू लिस्ट इक्वल्स टू, देखो एज लिस्ट, लेकिन यहाँ पे देखो एक प्रॉब्लम है, अगर ये प्रॉब्लम ना आना चाहता हूँ तो इसको हम लोगों को यहाँ पे लिखना होगा एरेज डॉट एज लिस्ट, यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे दे देंगे ये, देखो
यहाँ पे एरे लिस्ट आ गया। देखो देखो ये यहाँ पे प्रॉब्लम क्या दे रहा है, कैन नॉट इन्फर टाइप आर्गूमेंट्स। एरे इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, सो दैट्स वाई मैं कहता हूँ कि बहुत सारे कंपाइलर में ये प्रॉब्लम देते हैं। 90% केसेस में मैनुअली करना उसमें कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, एक एक करके एलिमेंट को उठाओगे, एक एक करके एलिमेंट को उठा के रख दोगे। अगर डायरेक्टली एक एरे में चेंज करना है तो तुम ऐसे कर सकते हो। डायरेक्टली एक एरे में चेंज करना है तो तुम ऐसे कर सकते हो कि डायरेक्टली मैंने लिखा, समझ लो ऐसे ही रहने दो, हाँ ऐसे ही लिखा, लेकिन मैं ऐसे लिखता हूँ एक्सप्लिसिटली, यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्टली 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे भी। अभी एरेज डॉट एज लिस्ट करने के बाद ये मुझे करने देगा, एक्सप्लिसिटली लिखने से करने देगा। लेकिन प्रॉब्लम में तो ऐसा नहीं देगा ना, तुमको एक एरे दे देगा, एरे को चेंज करने को बोलेगा या कुछ भी काम करने को बोलेगा एरे से। ठीक है, एरे दे देगा, एरे से कुछ भी काम करने को बोल देगा। सो जनरली उसको लिस्ट में अगर कन्वर्ट कर लोगे तो बहुत आसानी से काम हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ कि मैनुअली करना, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें, क्योंकि ये वाला जो काम होगा, ये वाला करने में टाइम कम्प्लेक्सिटी कितना जाएगा तुम्हारा, ON जाएगा। मैटर करेगा ON? कुछ मैटर नहीं करेगा। अगर ये करने में ON² प्रॉब्लम टाइम जाता तो मैटर करता। ठीक है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने में अगर ON प्रॉब्लम जाता है, कोई कुछ मैटर नहीं करता वो प्रॉब्लम में। सो मैनुअली कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, तो ये तो हो गया। अभी इससे हम लोग অ্যাজ লিস্ট ফাংশনটা এখানে কাজ করতো। যদি এটা এরকম থাকতো না, ধর এখানে এরকম থাকতো ইন্টিজার, দেন সাপোজ আমি অন্য একটা লিস্ট নিয়ে নিচ্ছি, ARR2 নাম দিলাম, ARR2। ইট ইজ নট অ্যান অ্যারে অফ ইন্ট, এটা ইন্টিজারের অ্যারে কিন্তু, হ্যাঁ অবজেক্টের অ্যারে। 5 দিলাম, এর মধ্যে এলিমেন্ট অ্যাড করছি এরকমই, আগে যেমন অ্যাড করেছিলাম ওরকম। সবকটা জায়গাতে ARR2 লিখতে হবে। सो मैंने एक और एरे बनाया, लेकिन इसके अंदर मैंने इंटीजर लिया, मतलब ये ऑब्जेक्ट है, एक एक ऑब्जेक्ट है। सो 20 30 जो ऐड होगा ना, ये सब एक एक ऑब्जेक्ट की तरह ऐड होगा, नॉट इंटीजर, मतलब इंट की तरह ऐड नहीं होगा ये। अभी अगर मैंने यहाँ पे इसको मुझे और एक लिस्ट के अंदर कॉपी करना है तो आसानी से हो जाएगा एज लिस्ट से। अभी हो जाएगा एज लिस्ट से। मैंने अगर यहाँ पे लिखा एरेज डॉट एज लिस्ट, इसके अंदर दे दिया मैंने ARR2 और एक एरे लिस्ट का वेरिएबल बनाया मैंने, एरे लिस्ट का, एरे लिस्ट इंटीजर का एरे लिस्ट, इंटीजर वेरिएबल का नाम समझ लो मैंने दे दिया ARR2 लिस्ट, ARR2 लिस्ट। एक सेकंड में यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, हाँ ये लिस्ट होगा, एरे लिस्ट नहीं होगा, सॉरी। देखो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कॉपी हो जाएगा, प्रॉपर्ली कॉपी हो जाएगा। हाँ ये कॉपी हो जाएगा। एरे डॉट एज लिस्ट कब काम करेगा, जब हम लोग, देखो अभी तो टाइप कास्टिंग करने का कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि ये इंटीजर एरे ही है, ये इंटीजर एरे ही है, इंटीजर इंट नहीं है। पहले क्या था, पहले इंट एरे था, इंट एरे था। देखो यहाँ पे इंट एरे से मैंने इंटीजर लिस्ट के अंदर ऐड करने को चाहा तो एक एक करके एलिमेंट ऐड हो रहा था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम लोगों ने अगर एज लिस्ट यूज़ किया तो नहीं होगा, क्योंकि इंट और इंटीजर में टाइप कास्टिंग डायरेक्टली नहीं होता, यहाँ से एज लिस्ट से नहीं होता, तो वो प्रॉब्लम हो रहा था। लेकिन यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि ये देखो ये इंटीजर टाइप का एरे है और ये भी इंटीजर टाइप का ही लिस्ट है, तो टाइप कास्टिंग करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्टली एज लिस्ट से वो ऐड हो जाएगा। एज लिस्ट ये एक फंक्शन है, इट चेंजेस एन एरे टू सेम टाइप ऑफ लिस्ट, सेम टाइप ऑफ लिस्ट, सेम डेटा टाइप लिस्ट, मतलब उस दोनों का डेटा टाइप सेम होना है, लिस्ट का और एरे का, दोनों का डेटा टाइप सेम। हाँ, लेकिन 90% केसेस में तुम लोगों को इंटीजर एरे ही दिया रहेगा, इंट दिया रहेगा, इसलिए मैन्युअली कन्वर्ट हो। ठीक है, मैं ऐसा ही बोलूँगा
काम समझ में आया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो? हाँ नहीं अच्छा ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग ऑपोजिट करना सिखाएंगे, मतलब एरे लिस्ट से एरे तक, एरे लिस्ट टू एरे, एरे लिस्ट टू एरे, ये भी हो सकता है। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर समझ लो मैंने यहाँ पे देखो ARR टू लिस्ट जो है, इसको तो मैंने पूरा ले लिया है ARR टू के अंदर जो जो एलिमेंट था, या फिर यहाँ पे भी देख लो ARR लिस्ट, इसके अंदर पूरा का पूरा एरे आ चुका है, ये वाला एरे आ चुका है, एज ए लिस्ट आ चुका है। ये आ चुका है। अभी इसको मुझे एरे में चेंज करना है, ये लिस्ट है अभी, इसको मुझे एरे में चेंज करना है। सो किसको चेंज करना है? एरे में ARR लिस्ट को चेंज करना है। सो मुझे यहाँ पे लिखना होगा ARR लिस्ट डॉट, एक फंक्शन होता है उसका नाम है टू एरे। टू एरे लिखोगे वो एरे में चेंज करके दे देगा, लेकिन वो किसके एरे में चेंज करेगा? इंट एरे नहीं, इंटीजर एरे, ठीक है, इंटीजर एरे में चेंज कर देगा, ठीक है। सो अगर मुझे इसको किसी के अंदर लेना है तो उसको किस टाइप का होना होगा? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जैसा होना होगा। तो अगर मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा इंटीजर, ठीक है, मैंने ऐसे लिखा इंटीजर CARR इक्वल्स टू, ठीक है, तो देखो वो एरर दे रहा है, लेकिन एक क्लास है उसका नाम है ऑब्जेक्ट, जो पॉइंट करता है ऑब्जेक्ट को। अगर मैंने ऐसे दे दिया ना तो देखो कोई एरर नहीं है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे एक चीज़ लिख देता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट, देख लो, ऊपर ही लिख देता हूँ एकदम, ईच of the collection framework classes contains objects, ठीक है, ऑब्जेक्ट को कंटेन करता है। हाँ, सो अगर मुझे किसी को भी चेंज करना है कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंडर में, हाँ, सो वो एरे ऑफ इंटीजर या एरे ऑफ स्ट्रिंग या एरे ऑफ फ्लोट ऐसा नहीं होगा, वो होगा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। ये भी एक अलग सा होता है ऑब्जेक्ट। सो अगर हम लोगों ने इसको कन्वर्ट किया तो वो ऑब्जेक्ट टाइप का होगा, ऑब्जेक्ट टाइप का। लेकिन अभी यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, ये तो ऑब्जेक्ट टाइप में हो गया, ये तो इंटीजर टाइप पे नहीं हुआ ना, मुझे इंटीजर टाइप पे चाहिए था। हाँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैं एक इंटीजर एरे ले लूँगा मैन्युअली अगर करना है। सो मैन्युअली करने के लिए हम लोग ऐसे करेंगे, इंटीजर एरे एक ले लो, SARR इक्वल्स टू न्यू इंट, इसके अंदर साइज़ दे दो, जो साइज़ था 5 ही था साइज़, ऐसा दे दो। देने के बाद एक एक करके लिस्ट से एलिमेंट को उठा के ऐड करते जाओ, ऐसा होता है। सो फॉर इंट I इक्वल्स टू 0, I लेस देन 5 I प्लस प्लस, और यहाँ पे क्या करेंगे SARR I इक्वल्स टू, किसको ऐड करेंगे? ARR लिस्ट, ARR लिस्ट के ith इंडेक्स पे जो है उसको SARR के ith इंडेक्स पे डाल दो, मतलब SARR के 0th इंडेक्स पे ARR लिस्ट का 0th इंडेक्स पे जो है उसको डाल दो, ऐसे ऐसे, ठीक। सो ARR लिस्ट डॉट गेट 0 नहीं I, मतलब SARR I के अंदर ARR लिस्ट को ऐड कर दो। ये मैन्युअली मैंने कन्वर्ट कर दिया, हाँ, मैन्युअली एरे लिस्ट टू एरे। लेकिन ये जो है ना ARR लिस्ट डॉट टू एरे फंक्शन ऑब्जेक्ट में चेंज करके देगा, तो मुझे इंटीजर एरे नहीं मिलेगा, मुझे ऑब्जेक्ट एरे मिलेगा, ठीक है। ये है मैन्युअली एरे लिस्ट टू एरे, और ये है मैन्युअली एरे टू कन्वर्टिंग एरे टू लिस्ट। প্রিন্ট জাস্ট করতে হবে এখানে ARR লিস্টটাকে জাস্ট প্রিন্ট করতে হবে। সো আমি এখানে প্রিন্ট করে দিচ্ছি sys out ARR লিস্ট।
ऐसा करने से पूरा प्रिंट हो जाएगा, 20 से 60 तक पूरा प्रिंट हो जाएगा। देखो देखो 20 30 40 50 60 पूरा प्रिंट हो गया। अभी अगर इसको मुझे प्रिंट करना है ना, SARR को मुझे प्रिंट करना है ना, SARR को मैं ऐसे नहीं प्रिंट कर सकता, sysout SARR ऐसे मैं नहीं प्रिंट कर सकता। क्यों? क्योंकि SARR तो एरे है ना, एरे को तो हम लोग डायरेक्टली प्रिंट नहीं कर सकते, लूप लगता है। तो हम लोग लूप लगाएंगे यहाँ पे, फॉर int I equals to 0, I लेस देन जो एरे का साइज है SARR.length I प्लस प्लस, और इसको इसके अंदर देंगे। आप प्रिंट करेंगे किसको? SARR I को, ठीक है। तो अभी देखो एक एक करके अलग अलग लाइन पे प्रिंट होगा अलग अलग एलिमेंट्स। देखो प्रिंट हो चुका 20 30 40 50 60, ठीक है। तो ये था एरे से लिस्ट में चेंज करना और लिस्ट से एरे में चेंज करना। अगर शॉर्टकट में करना चाहती हो तो एज लिस्ट फंक्शन है, लिस्ट से एरे, मतलब एरे से लिस्ट के लिए एज लिस्ट फंक्शन है, एंड एरे लिस्ट से एरे के लिए टू एरे फंक्शन है। लेकिन उससे नहीं करना, क्योंकि टू एरे फंक्शन क्या करता है? ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, और जो एज लिस्ट फंक्शन है वो भी ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, लेकिन इंटीजर में है, ठीक है। सो मैन्युअली ही करना, ये वाला करना, ये और ये दोनों यूज़ करना। अभी कुछ और फंक्शंस हैं, मैं बता देता हूँ यहाँ पे। साइज़ नाम का एक फंक्शन है, इससे हम लोग कोई भी लिस्ट के साइज़ के बारे में पता लगा सकते हैं। ये तो पता होगा, मैंने अगर यहाँ पे दिया ऐसे sysout, यहाँ पे दिया ARR list डॉट साइज, ऐसा दे दोगे तो उस लिस्ट का साइज़ आ जाएगा। 5 है उसका साइज़, तो देखो 5 ही आएगा यहाँ पे, देखो 5 है। सो इतना सारा फंक्शंस था लिस्ट के अंदर, ऐड फंक्शन, गेट फंक्शन, रिमूव फंक्शन, इंडेक्स, बहुत सारा बताया। उसके बाद लिस्ट से एरे में एंड एरे से लिस्ट में कन्वर्ट करना। जो प्रॉपर उपाय है वो है मैनुअली करना, एक एक करके एरे से एलिमेंट को उठाना, लिस्ट में ऐड करना। वैसे ही सेम तरीके से लिस्ट से एक एक करके एलिमेंट को उठाना, एरे के अंदर ऐड करना। वही मैंने किया है यहाँ पर, देखो लिस्ट से एक एक करके एलिमेंट को उठाया, एरे से एक एक करके एलिमेंट को उठाया, लिस्ट के अंदर डाला, और यहाँ पे भी वही किया। एक एरे बना लिया, उसके अंदर मैंने लिस्ट से एक एक करके एलिमेंट को उठाया, एरे के अंदर डाल दिया, ठीक है। एरे के अंदर डालने के लिए क्या किया? एरे के आयत इंडेक्स पे लिस्ट के आयत इंडेक्स को बैठा दिया। मतलब समझ लो, एरे तो ऐसा तैयार हुआ ना, खाली एरे तैयार हुआ। और लिस्ट कैसा है? लिस्ट है ऐसा, लिस्ट ऐसा है। लिस्ट ऐसा है, तो लिस्ट में से एक एक करके एलिमेंट को उठाया, आयत इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको उठाया, उसको इसके आयत इंडेक्स पे बैठा दिया, इसके आयत इंडेक्स से उठाया, इसके आयत इंडेक्स पे बैठा दिया। तो देखो SARR I के अंदर, ARR लिस्ट के अंदर हम तो ऐसे नहीं लिख सकते ना, ARR लिस्ट है, ARR लिस्ट I ऐसा तो नहीं लिख सकते ना, हमको गेट लिखना होगा, डॉट गेट I, ठीक। तो ये था। आई थिंक कोई प्रॉब्लम है नहीं ना, दूसरा नहीं बोलो। अच्छा, तो ये तो बहुत ही बेसिक सा था, इसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लमेटिक है नहीं। जनरली लिंक लिस्ट जो है ना, लिंक लिस्ट सेम तरीके का ही होता है। हाँ, लिस्ट जैसा होता है वैसा ही लिंक लिस्ट भी होता है, लेकिन थोड़ा सा अलग होता है, मतलब कंस्ट्रक्शन में अलग होता है थोड़ा सा। एरे लिस्ट के अंदर और लिंक लिस्ट के अंदर कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा अलग होता है। देख लो, मैं दिखा देता हूँ कैसा है। एक और यहाँ पे फाइल बनाते हैं, इसका नाम देते हैं लिंक लिस्ट 1.java। क्लास ऐसा दे दिया। अब यहाँ पे लिंक लिस्ट बनाना है, लेकिन हम लोग
एक चीज़ बताओ, लिस्ट जो है ना वो तो इंटरफेस है, लिस्ट है इंटरफेस। लिस्ट को इम्प्लीमेंट कौन कौन क्लास करता है? लिस्ट को इम्प्लीमेंट करता है एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, स्टैक एंड वेक्टर, ठीक है, ये चारों करते हैं। लेकिन इनमें से मुझे जानना है सिर्फ दो, एरे लिस्ट एंड लिंक लिस्ट। स्टैक एंड वेक्टर मुझे नहीं जानना, ठीक है, उतना ज़्यादा काम पे नहीं आता। स्टैक हम बाद में करवाएंगे, लेकिन लिंक लिस्ट अभी जानना है। सो हम यहाँ पे वेरिएबल किसका बनाएंगे? वेरिएबल बनाएंगे लिस्ट का ही, लेकिन ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे? लिंक लिस्ट का। तो देखो यहाँ पे भी वही किया था, देख लो, यहाँ पे मैंने वेरिएबल बनाया था, वेरिएबल बनाया था लिस्ट का, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट किसका बनाया था? एरे लिस्ट का। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हम लोग वेरिएबल बनाएंगे लिस्ट का एंड ऑब्जेक्ट बनाएंगे, हैं समझ रहे? मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग ले लिया, स्ट्रिंग ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, स्ट्रिंग ही लेते हैं क्योंकि वो वाला तो मैंने इंटीजर के लिए ऑलरेडी किया है। लिस्ट स्ट्रिंग, पहले तो इसको इंपोर्ट करना होगा। एडिटो लागी दो तो, एडिटो लागी दो तो আমার এখানেই সুবিধা হচ্ছে মা। तो देखो मैंने यहाँ पे लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया। लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद একটা কথা বলবে না, হ্যাঁ, लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मुझे यहाँ पे ऐड करना होगा एलिमेंट्स को। सेम तरीके से ऐड करेंगे, जैसा ऐड फंक्शन होता था वैसे ही ऐड करेंगे। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा ऐड, स्ट्रिंग ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे कुछ नाम ऐड करता हूँ, उसके बाद कुछ और नाम ऐड करते हैं। ऐसे कुछ नाम मैंने ऐड कर दिया। अब इसको डायरेक्टली हम लोग प्रिंट भी कर सकते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके। सिस आउट करके नेम्स को मैंने प्रिंट कर दिया, तो सारा का सारा नाम एक साथ आ जाएगा। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम हो चुका है। लिंक लिस्ट वन ही तो मैंने दिया। अच्छा अच्छा, अभी हो गया। देखो सारा का सारा नाम आ चुका है। हाँ, जनरली अगर मुझे यहाँ पे कहीं पे भी ऐड करना है, जैसे मैंने वहाँ पे किया था, ऐड इंडेक्स का नाम दिया था, इंडेक्स के बाद एलिमेंट लिखा था, अगर वैसा करना है मुझे यहाँ पे, तो देखो क्या होता है, नेम्स डॉट ऐड, ठीक है। ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे इंडेक्स देता हूँ 2, ठीक है। 2 देने के बाद मैं यहाँ पे एलिमेंट देता हूँ, समझ लो कुछ और नाम दे दिया, ठीक है, ऐसा दे दिया। अभी देखो यहाँ पे ऐड होता है या नहीं होता। देखो 2th इंडेक्स पे ऐड हो चुका है, लेकिन यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगा है। एरे लिस्ट पे ऐड होने के लिए टाइम कम लगता है, लेकिन यहाँ पे ऐड होने के लिए टाइम ज़्यादा लगता है। क्यों? है ना, डबल लिंक लिस्ट ही है। मतलब यहाँ पे मतलब क्या है इसका कि लिंक लिस्ट का रूल क्या होता है। लिंक लिस्ट का रूल होता है एक एलिमेंट के पास, डबल लिंक लिस्ट का रूल क्या होता है, एक एलिमेंट के पास उसके पिछले एलिमेंट का एड्रेस एंड नेक्स्ट वाले एलिमेंट का एड्रेस भी रहेगा, है ना, ये होता है रूल, ठीक है।
सो अगर मुझे यहाँ पे ऐड करना है एलिमेंट, वहाँ पे कैसे ऐड होता था, जस्ट शिफ्ट करता था, ऐड कर देता था ऐसे। लेकिन यहाँ पे कैसे ऐड होगा, यहाँ पे विकी का नेक्स्ट वाला पार्ट रकीब को पॉइंट करेगा, देन रकीब का नेक्स्ट वाला पार्ट राहुल को पॉइंट करेगा, तब वो जाके ऐड होगा। ठीक है, सो ये डिफरेंस है थोड़ा सा, इसलिए लिंक लिस्ट से ज़्यादा एरे लिस्ट यूज़ होता है, यही फ़र्क है कुछ नहीं। लिंक लिस्ट से ज़्यादा एरे लिस्ट यूज़ होता है। बहुत लोग ऐसा भी है कि एरे लिस्ट सीखते हैं कुछ और लिंक लिस्ट सीखते ही नहीं अलग से। ठीक है, लेकिन मैं सिखा देता हूँ क्योंकि 50% to 60% सीखना चाहिए। हाँ, हो गया। হ্যাঁ, আর একটা ইন্টারফেস হলো চাইল্ড ক্লাস, সেটা হচ্ছে সেটের, সেটের না কিউবের, কিউবের। হ্যাঁ হ্যাঁ, দুটো সেম, দুটো সেম, জাস্ট একটু আলাদা, কারণ কিউতে কী হয়, ফার্স্ট ইন ফার্স্ট আউট হয় না, সেটা এখানে হবে না। হ্যাঁ, तो ये तो हो गया ऐड फंक्शन। उसके बाद यहाँ पे भी एलिमेंट को रिमूव करने के लिए, गेट करने के लिए सेम फंक्शंस होता है, लेकिन टाइम ज़्यादा लगता है। मतलब ये जो फंक्शंस है ना यहाँ पे, गेट फंक्शंस, रिमूव फंक्शंस सेम होता है, कुछ अलग नहीं है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, सेम रहता है, कुछ नहीं। तुमको जस्ट डिफरेंस जान लेना है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है ये कि एरे लिस्ट डायनामिक एरे होता है एंड लिंक लिस्ट डबली लिंक लिस्ट होता है। मेमोरी कम लगता है एरे लिस्ट के अंदर, लेकिन लिंक लिस्ट के अंदर मेमोरी ज़्यादा लगता है। क्यों? क्योंकि एरे लिस्ट के अंदर एक एलिमेंट स्टोर हुआ, मतलब क्या स्टोर हुआ, मतलब सिर्फ एलिमेंट और उसका इंडेक्स स्टोर हुआ है ना, और कुछ नहीं। लेकिन लिंक लिस्ट पे क्या क्या स्टोर हुआ, एलिमेंट स्टोर हुआ, उसका इंडेक्स स्टोर हुआ, पिछले वाले का एड्रेस भी स्टोर हुआ, नेक्स्ट वाले का एड्रेस भी स्टोर हुआ, तो ज़्यादा जगह लगा। ठीक है, एक्सेस करना किसको इजी है, एरे लिस्ट को एक्सेस करना इजी है, लिंक लिस्ट को एक्सेस करना हार्ड है। मतलब हार्ड नहीं, टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए हम लोग 90% केसेस में लिंक लिस्ट ही यूज़, एरे लिस्ट ही यूज़ करेंगे। और एक फंक्शन बता देते हैं, उस फंक्शन के बाद तुम लोग घर पे करना लिंक लिस्ट पे पूरा का पूरा, ये जो मैंने काम किया, पूरा काम मैंने जो किया वो तुम एरे लिस्ट में जो मैंने काम किया वो तुम लिंक लिस्ट में करना। ठीक है, देखो मैं जो बता रहा हूँ ना, जैसे करने को वैसे प्रैक्टिस करो। 90% केसेस में तुम लोग को जनवरी तक में टाइम लूँगा, जनवरी तक हो जाएगा। हाँ, तो मैं यहाँ पे और एक फंक्शन सिर्फ बता देता हूँ कि ये इसका फंक्शन नहीं है। देखो एक चीज़ है, वो मैजिक जैसा है एकदम। मतलब देखो तुम लोग तो बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम करते थे, लाइक मैक्सिमम निकालना, सेकेंड मैक्सिमम निकालना, मिनिमम निकालना, बहुत सारा बड़े बड़े प्रोग्राम तुम लोग करते हैं। सो वो सब बड़े बड़े प्रॉब्लम का एक फंक्शन होता है, वो फंक्शन से हम लोग बहुत ईजिली काम कर सकते हैं। एक तो होता है एरेज क्लास, एरेज क्लास के अंदर कुछ कुछ होता है, लाइक शॉर्टिंग, सर्चिंग, ये सब कर सकते हैं हम लोग, लेकिन रिवर्स ये सब नहीं होता बात। हाँ, लेकिन कलेक्शंस नाम का एक क्लास है, उसके अंदर रिवर्स भी होता है और बहुत सारा दूसरा काम भी होता है, मैक्सिमम मिनिमम सब होता है वहाँ पे, सम भी होता है। तो यहाँ पे देखो कलेक्शंस, ये एक क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसमें से बहुत ही ज़्यादा आसानी से काम हो जाता है, बहुत ज़्यादा आसानी से। सो तुम लोगों को दो क्लासेस मेनली जानना है, एक है एरेज क्लास और एक है कलेक्शंस क्लास। कलेक्शंस क्लास ज़्यादा जानना है क्योंकि कलेक्शन क्लास के अंदर सब फंक्शंस बना हुआ है, बड़ा बड़ा प्रोग्राम, एक एक फंक्शन बड़ा बड़ा प्रोग्राम है, लाइक मैक्सिमम, मिनिमम, सम, प्रोडक्ट, सब कुछ कर सकते हो तुम वहाँ पर, लाइक जस्ट वन लाइन्स। ठीक है, सो वो वाला फंक्शन तुम लोगों को करवाना है। हाँ, और एरे लिस्ट का ये वाला चीज़ पूरा लिंक लिस्ट में तुम लोग करना। अच्छा, और एक बात, तुम लोग नेक्स्ट क्लास कब करोगे बताओ? कल कर सकते हो? कल ट्यूसडे, সাড়ে নটা সময় দেবো? बता दो प्रॉब्लम है या नहीं, होगा ना? अभी देखो मैं जो क्लासेस करवा रहा हूँ ना, मैं बहुत ही जल्दी मैं दे रहा हूँ रिकॉर्डिंग, क्योंकि आज मैंने 8 बजे क्लास करवाया, 8 बजे PHP का क्लास करवाया और उन लोगों को रिकॉर्ड दे भी दिया मैंने। हाँ, तो मैं आज अभी रिकॉर्ड दे दूँगा क्योंकि मैंने एक ट्रिक यूज़ किया है, उस ट्रिक से बहुत जल्दी यूट्यूब में वीडियो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, सो मैं उससे तुम लोगों को क्लास देता हूँ, जस्ट लिंक लिस्ट में काम करना है, जो मैंने काम करवाया।
ठीक है। कल कलेक्शंस क्लास जो है वो करवाएंगे, उसके साथ कुछ ओके प्रॉब्लम्स भी करवाएंगे। ठीक है, ठीक है रखते